बागाड़िए रहते हैं, लोहा पीटा रहते हैं। हाँ हाँ, वो चीज़ सही है। वो शायद मतलब मेहनत करते हैं वो कुल मिला के। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि उनकी मेहनत और उनका हाँ हाँ, खाने पीने का सब प्रॉपर वो लगता है। चाहे अपने वो रहे क्या कहते हैं मजदूरी करने वाले रहे, 200-200 रुपये 300-300 रुपये में भाई भरी धूप में मजदूरी करेंगे वो, लेकिन मेहनत का कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मांग रहे हैं ना। सरकार को दोष नहीं दे सकते एक जगह। नहीं दे सकते यार, क्योंकि यार सरकार ने काम किया है, मतलब है ना। कर रही है सरकार सामने वाले आदत ही वैसी पड़ गई है ना, मतलब डिपेंडेंसी कल्चर में बेसिकली बात यही होती है कि सरकार इतना कर देती है ना कुछ लोगों के लिए, तो वो सरकार पर निर्भर हो जाते हैं पूरे कि यार ये तो हमारे पिता बने बैठे हुए हैं, माई बाप कल्चर जो रहता है, तो अब हम खुद क्यों कुछ कर रहे हैं, तब सब कुछ मिल ही रहा है हमारे लिए, सरकार से नहीं मिल रहा तो फिर जाके भीख मांगो लोगों से, तो वो जो है उधर से मिल जाएगा आपको। So namaste everybody. Today I went to bus stand to meet my brother Sambhav, and I found him there. But before finding him, actually I saw something else there. I was at his hotel. He owns a hotel cum restaurant there, and on the left side of mine where I was standing, I was sitting on the bike. I saw that a bunch of people were sleeping there on the in the waiting area. So it is basically a bus stand, and you will find that this structure is actually a place wherein the passengers whose buses are late, or they need to wait, so they can come there and wait. But instead of the passengers, the waiters, actually these people were there and who had occupied the space as their own home, as their own bedroom. Okay, so they were sleeping there basically with their belongings. Now who are they, where have they come from, what were their purpose of staying there, and what do they actually do, how do the money come, where does the money come from, how do they manage their living, and how can they afford the phones, there is a paradox. While on the one hand they seem like they are living hand to mouth, because they are not staying in the hotels. There are plethora of hotels out there, but they are sleeping on the public space. Almost we can say that they are sleeping on the road. But there are a couple of other harsh reality, shocking revelations about them, about their lifestyle, and that would be contradictory to the image that you see now, wherein they are sleeping on the public space or road. One contradiction you can see right in the phone only, like on the screen only, wherein a woman can be using a smartphone. Okay, so it seems like perplexing and confusing that while you can have a phone, but you cannot actually afford a home. You can have a phone, but you cannot afford a home. Is that really so? What is the case? We would try to understand through the person who know them very well. Move to him. So this is the bus stand. I was just waiting for my brother who has now come to me, and he kept me for waiting for him like for past 10 minutes, and to my utter shock and surprise, I saw a very gloomy picture of people sleeping on the floor. And this is no place to sleep, this is no place to reside, to spend night. You can see the street dogs. We hear the news that dogs bite innocent small children sleeping outside the homes. This is not about the dogs, this is about the thieves who can steal the materials. This is about the women who are sleeping. They perpetually face the threat of getting harassed or other threats. संभव भाई, मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लोग कौन हैं, और ये सिर्फ आज की बात है कि ये आज ही यहाँ पर आए? इनके सबके घर हैं बाकायदा। अच्छा, इनके घर हैं? हुए हैं सब। अच्छा, काम धंधे सब हैं, गाड़ियाँ तक हैं सबके घर में, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से सब हैं। क्या बात कर रहे हो? संपन्न है ये सब? संपन्न है। मतलब इसमें अपन सरकार को दोष नहीं दे सकते कि दोष नहीं दे सकते। अच्छा, सरकार को कुछ नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूँ कि ये और अच्छी जगह से, बड़ी जगह से, ये 2-3 लोग हैं वहाँ से, राधोगढ़ से। अच्छा, राधोगढ़ में घर है खुद का। ओहो हो। हाँ।
हेलो। So guys, it was an observation basically, and it taught me a lot of things. The first and foremost being that you should not be very gullible. You should not be gullible. You should not emote heavily. You should not pour sympathy, shower sympathy upon somebody merely looking at how they are superficially, you know. And sometimes there are a harsh truth or reality, the so many hidden layers, you know, behind something that you do not see with your naked eyes, and you need the opinion of the people, those who are living around them, around that event taking place, or around those people, those you are, you know, having sympathy with, or yeah. So that was it. So take it as a participant observation. I just observed it. I participated in it. Not that I interviewed them, the people themselves, but yeah, the people, like those who observe them, have been observing them for a long time, have been interacting with them, and it actually shed light upon the nature of what should we say, of course, on the poverty, on inequality, and it was a basically demonstration of dependency culture, wherein the people coming from the perceptively lower state of the society depend on the state, either on the state or on the civil society, like people like us, and they don't deliberately develop the capabilities to do something productive, tangible, material, you know. um, why does it happen? Secondly, it also shows a glimpse of the culture of poverty, as Oscar Lewis said. So in India, we can see a culture of poverty. You know, people themselves do not want to be independent, Atmanirbhar. This is another thing. Third thing is what are the various ways applied by the people so as to earn money, or what are the various ways? I mean, fourth thing is about the status inconsistency. On the one hand, people cannot afford a hotel room, and on the other hand, the same very people are using big smartphones, you know, worth 20,000 rupees, and they are actually staying on the footpath, they are staying on the public spaces, they cannot afford a room, they don't have the home, but they are having the smartphones. What is this thing? What does it show? What explains it? So these are some questions that we would try to answer in the backdrop of my recent observation. It was just that I was at Persistent, and in the waiting room, in the waiting space, I saw a couple of people, a bunch of people, those who were staying there with their belongings. So of course it seemed like they weren't waiting for some bus to come so that they get on the bus and go to their destination, but it was just that they were living there for a long period of time. So who were they, where did they come from? These all the answers were questions were answered by my brother, and let us take a dive into the interaction. Enjoy. हाँ, तो समय भाई सब कुछ होते हुए भी इनके पास संपन्नता है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ियाँ भी हैं, और भाई खाना भी साहब, ये लोग मिलेगा। पानी पीते हैं ना, बिस्लेरी का पीते हैं, बोतल खरीद के यहाँ सो रहे हैं, बिस्लेरी लेते हैं मेरे से। क्या बात कर रहे हो? पानी नहीं पीते, बाहर का कहीं का। ओहो हो, तो मैंने रोटी दूंगा, नहीं लेंगे। मतलब मेरे से ज़्यादा ठाट और हाँ। उनके नखड़े डिमांड्स हैं। हाँ, पहले ही एक टाइम खाएंगे तो होटल पे ही खाना उन्हें, लेकिन खाएंगे अच्छा खाना। हाँ। खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे बाहर का कहीं का। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से, और ज़्यादा सी कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। होटलों में रुकते हैं, इधर खड़े हो तो फिर यहाँ क्यों सो रहे हैं अरे ये भाई? कुछ जैसे उनमें बहुत है, जैसे एक टोरी उधर सो रही है, वो पीछे बताओ बस का सो रही है, वो उन्हें कम से कम कितने लोग हैं पता है? वो हाँ हाँ वो है 50 लोग। हाँ हाँ। मुझे ज़्यादा बेटा उसने करिए 4 साल। क्या बात कर रहे हो? 4 के बच्चे, 50 लोग। अच्छा। हाँ, जब वो 50 आते हैं ना, हाँ। कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, रूम में रुकते हैं, अपने यहाँ रुकते हैं ना लॉज में। अच्छा, 200 रुपये में लॉज में रुकते हैं बराबर। अच्छा, अपनी लॉज है यहाँ पर, हाँ। भाग्यश्री है ना? हाँ, उसमें रुकते हैं बराबर वो।
लेकिन अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि मतलब ये यहाँ सो क्यों रहा है, ये उद्देश्य क्या है इनका, मतलब तब इतने संपन्न है तो। जैसे इनके अगर क्राउड कम हुआ, जैसे अभी ये ग्रुप में बहुत सारे, हाँ जैसे ये 50 से कम होते, 10-15 जने होते हैं तो ये लॉज में रुकते हैं। अच्छा हाँ, ये तो ने देखा कि भाई अपन ज़्यादा हैं तो कहीं भी सो सकते हैं, अभी गर्मियाँ हैं, अच्छा। ये पानी हो सर्दी हो तो ये लॉज में रुकते हैं। एंट्री भी है मेरे पास, सबके आधार कार्ड रखे हैं पूरे के यार, एक के 17 बच्चे हैं और पूरे अच्छा। रुकते हैं लॉज में। मैं मना कर देता हूँ, गंदगी वाड़ा करते हैं तो इसलिए मना कर देते हैं, अपन तो रुकते नहीं हैं अपन ज़्यादा। तो फिर ये क्या मतलब रोजगार के लिए यहाँ आते हैं बाहर से दूर से, या आने का पर्पस क्या रहता है इनका? पैसे मिलते हैं ना बहुत लोग, जैसे क्या है कि मजदूरी करते हैं ये? मजदूरी नहीं करते ये, तो क्या मांगते हैं, भीख मांगने में इतना कमाते हैं कि ये अच्छा। मस्जिद है, हाँ हाँ इन लोगों में क्या है कि मस्जिद के बाहर बैठ गए हाँ तो वहाँ तो उनको पैसा मिल रही है। हाँ ऐसा है इनका, तो इनके वाले इनको ज़रूर देंगे, हाँ अपने वालों को तो शायद नहीं देंगे, हाँ। उनके वाले इनको तो देते ही है। ऐसा अच्छा है। अभी रोज़े चल रहे हैं जैसे हाँ। कि, तो ये नेक कार्य समझेंगे अगर किसी की मदद करते हो आप? हाँ, कह रहा हूँ कि मुझे अगर खुले की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। 1000-2000 रुपये खुले अगर मैं इनसे सांग कहता हूँ भाई, हाँ। 2000 रुपये खुले तो तुरंत देते हैं। अच्छा इनके पास निकल जाएंगे? आराम से एक व्यक्ति के पास 1000 निकलते हैं। अच्छा हाँ, पर डे की अगर एक परिवार ये मांग रहा है ना, एक परिवार हाँ। की इनकम में 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे कमा के लाते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ। बस मांग के ही अकेला? मांग के शाम को आप कितने 2-3 हज़ार रुपये खुले लेके जाते हैं। ओहो हो। ले जाते हैं, पैक किलो भैया 500 का दे दो यार। ओहो हो। अपन से बड़े बड़े मोबाइल चला रहे हैं, ओहो हो। हाँ मैं देख रहा था ना, 25-25 हज़ार के मोबाइल चला रहे हैं। ये देखो। वही मैं बता रहा हूँ कि इतने महंगे मोबाइल चला रहे हैं, आप समझ लो आप, उन्हें कोई डर नहीं है, इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं, हाँ। थोड़ा कोई वो नहीं है। तो उससे एक बहुत अमेजिंग बात निकल के आती है कि ये वाला बिजनेस आइडिया बहुत तगड़ा है, मांग के खाओ आप। और वही कह रहा हूँ, एक दो केस ऐसे निकले कि भाई मांगने वालों का जब रिकॉर्ड निकाला उन्होंने तो भाई वो तो लखपति लोग निकले। कह रहा हूँ कि मैं तो अगर मेरे पास मांगने आते हैं तो पहले से ही या तो वो मुझे देख लेते हैं तो मांगने मेरे पास नहीं आएंगे कभी, हाँ और वो मांगने आ भी गए गलती से तो मुझे तो उसका रिकॉर्ड मालूम है कि भाई बिल्कुल। मैं यहाँ देख रहा हूँ ना बचपन बिल्कुल। से, तो इसलिए मैं मना कर देता हूँ भाई क्या तुम्हें कमी है। अच्छा और एक नया इसमें नया एंगल भी है, कुछ कुछ मांगने वाले किन्नर बन जाते हैं, झूठे हिजड़े बन जाते हैं। जैसे अभी मैं ट्रेन में गया झूठे बन जाते और भाई 1 मिनट में वो 10 आदमी से जो है 10-10 रुपये ले रहा है, हाँ। उस हिसाब से वो दिन के 5-1 हज़ार रुपये आराम से कमा रही है, और वो हिजड़ा भी नहीं है। नहीं है ना, ऐसे कितने केस है पकड़ा गया है। अभी लास्ट ईयर भोपाल में पकड़ा था एक लड़के को, अच्छा लड़का था, वो लड़का था? ओहो। सिरोंज में ही हुआ था, एक वो लड़का बना था। वो बदनाम किन्नर कम्युनिटी हो रही है, कम्युनिटी होती है, फिर वो फिर उसे ढूंढते हैं कहाँ अच्छा। है वो, और उसे वो फिर अच्छे कूटते हैं तरीके से- फिर, है ना? कूटते बहुत बुरे। क्या अभी सिरोंज का ही नहीं हुआ तो वो वाला, हाँ तो उसमें भाई उन्हें पता चला है वो सिरोंज में रुका हुआ है, हाँ। नहीं रुका तो बराबर अच्छा। अंदर। तो उसमें उन्होंने जानकारी लगाई और रात में 11 बजे मेरे पास आए थे, यहीं बैठा था किला यार सम्भव भाई किला, वो रुका है यहीं कहीं लॉज में। हमने वो सब नींदों में से सो के ऐसे ही उठ के आ गए थे बिना तैयार हो गए, ऐसे ही अच्छा। लोवर में उठ के आए तो पूरे गाड़ी भरा। अरे अरे उनने कहा था बस मिल जाए एक बार में, स्थिति कर देंगे। हाँ। अरे फिर वो जाके पकड़ा ही गया था नयपुरे में, उन्होंने पकड़ लिया था। अच्छा। ऐसा तो हो जाता कि किला दूसरी बार आएगा नहीं सिरोंज। अब वो सिरोंज आता है ना तो मुँह बांध के तुरंत चुपचाप निकल जाता है काम कर। अच्छा इसलिए ही अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि कोई मांगने वाला आए तो उसे पैसे की जगह कुछ खाने के लिए दे दो। खाने को दे दो, और देख लेना कि अब आज के मांगने वाले खाना मना कर देते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। मैंने देखा है ना, पैसे दो। मैंने देखा है, मेरा खाने की चीज़ जो अपन कभी नहीं खाएंगे ना, उतनी ब्रांडेड बिस्किट मैंने उनके लिए दिए। मैंने कहा लो खाओ ना, कह रहा नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। वही कह रहा हूँ ना, ऐसा कितने ही देखे हैं मैंने। और लोगों को ये चाहिए कि भाई जागरूक नागरिक बन के खाना दें, और खाने का भी पैकेट फाड़ के दें। नहीं तो एक बार एक दीदी थी मुझसे कहती हैं कि मुझे ना एपी फिश पिलाओ। मेट्रो के नीचे खड़ा हुआ था, एपी फिश तो मैं नहीं पीता यार, मैं खुद जो है कह रहा हूँ ना, ये सब कहती है नहीं पिलाओ। तो मैंने उनके लिए लेके दी, वो 30-40 की जितने की भी बोतल थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने 10 रुपये कम में वो वापस उसे ही बेच दी, और उससे भी सब सेटिंग है ना। तो भाई ये एक मैसेज लोगों को देना चाहिए कि भाई आप गरीबों की यदि सहायता करना चाहते हो तो कर रहे हैं, लेकिन करो एक लिमिट तक कि आप उसका आगे पीछे देख के सहायता करो उसे। नहीं, आगे पीछे देख नहीं सकते, मतलब खाने से सहायता करो, है ना। हाँ, तो भाई ये एक मैसेज रहेगा। ये बात जो है ज़्यादातर लोगों को मालूम रहती नहीं है, और वो इमोशंस में बह के जो है पैसों से सहायता कर देते हैं। और कभी कभी तो लोग ना प्राउड फील करते हैं, है ना, कि यार अब बहुत बड़ा काम कर दिया हमने तो हाँ आपसे मैं कहना चाहूँगा। और अभी हाँ बहन इधर बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, तो उसी लहजे में मैं बोलना चाहूँगा कि
आपको यदि मदद करनी है तो आप जो है खाना लेके दे दो। अगर पैकेट ले रहे हो तो आप वो पैकेट को फाड़ दो और पैकेट फाड़ के दे दो, और इससे ये रहेगा कि हाँ वो जो भी खाना खाएगा तो उसके पेट में ही जाएगा, और ऐसा नहीं रहेगा कि आप जो है किसी को भी बिना मेहनत का पैसा दे रहे हो। वो आपके लिए भी सही नहीं है, सामने वाले के लिए भी सही नहीं है, और स्टेट के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है गंदगी मचाएंगे, इधर आके ऐसे लेट जाएंगे, हर कहीं रोडों पे सोंगे तो हाँ मोदी जी का नाम ख़राब होगा कि साहब मोदी जी ने घर नहीं बनाई क्या? कैसे घर बनाया मोदी जी ने? भाई कहाँ गया स्वच्छता अभियान आपका? स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी और विकसित भारत, फिर वो एक स्टेट की और गवर्नमेंट की भी इमेज ख़राब होती है ना। तो आप इन लोगों का जो डिपेंडेंसी कल्चर है, इसकी एक हाँ थेरी है, अपन पूरी थेरी जो है समझाएंगे कभी। तो आप डिपेंडेंसी कल्चर को जो है प्रमोट मत करिए, है ना। और सहायता करना हो आपको तो आप खाने के साथ सहायता करिए, और समझाइए कि साहब ऐसे मांगो मत, है ना। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मांगे, वहाँ देना भी चाहिए, आपके लिए पैसे भी देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि साहब यहाँ पर ज़रूरत है तो आप पैसे भी दे। सम्मा भाई कोई मैसेज देना चाहोगे क्या आप? मैं तो ये कह रहा हूँ बस सोच समझ के दो, किसी को देना तो दो, लेकिन एक कंडीशन देख के दो। ऐसा नहीं कि ऊपरी कोई मांगने आ रहा है सबको तो कोई। और ये भी है कि आप मॉनेटरीली हेल्प करने से अच्छा है कि इन काइंड, मतलब आप कुछ वस्तु दे दें या कुछ खाना दे दें। तो भाई तू तो ये दुकान पे खा ले, खाना खा ले, खाना तो जैसे खा ये ले। देखो भाई, कभी भी आपको ऐसा लगे भाग्यश्री हमारी होटल है, यहाँ पर लेके आइए, स्वादिष्ट दाल वाफले या जो कुछ भी XYZ आपको खिलाना हो तो आप खिलाइए, गारंटी सम्भव भाई की रहेगी। किसी को भी करीब है भाई खाना मैं खिला दूंगा, लेकिन उसे खाना चाहिए। वो डायरेक्ट ये कहते हैं पैसे दो, आप तो खाना लेते नहीं। मैं कहता हूँ भाई रोटी ले खाने, नहीं पैसे दे दो। ये पूरा कह रहा हूँ ऐसे कितनी टोली आती है दिन भर। अच्छा, महीने रोके देते हैं, 20 25 दिन उनने अच्छी कमाई करी और चलो अपने घर। इससे क्या है यार, वो एक इमेज भी ख़राब होती है ना। मतलब यहाँ गवर्नमेंट जो है वो प्रयास कर रही है कि स्वच्छ भारत बनाया जाए, विकसित भारत बनाया जाए, है ना। अच्छी स्वच्छ इमेज देके, डेवलप्ड इमेज देके ये लोग आगे पसर जाएंगे, बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कभी नहीं सुना सकते इंडिया वाले आके तो रहेंगे थोड़ा सा। डिपेंडेंसी कल्चर बन गया है, मतलब ये एक पूरी थ्योरी है डिपेंडेंसी कल्चर की। क्या स्टेट डोल्स देता जाता है, स्टेट ने जो है इनके लिए डिपेंडेंट बना दिया। थोड़ा सा वो है ना, गवर्नमेंट देती जा रही है तो उनकी मेंटालिटी वैसी बन गई, डिपेंड होने वाली। क्या भाई मांगते ही रहो आप, या तो स्टेट से मांगो आप, मतलब वो अपना कौन सा घर चल रहा है आवास योजना, या तो फिर लोगों से मांगो भीख जा जाके। इनमें से सबके आवास योजना में घर हैं। अच्छा, हाँ रहने वाले सबके आधार कार्ड है, बाकायदा सब कुछ है। हो सकता है किराए पे चलवा दिए हो। हाँ है ना कुछ सब। अरे यहीं ऊपर के हैं कुछ लोग तो। अच्छा, मदागंज साइड के गाँव के, कुछ इधर के, कुछ बागड़ी, सब वो तो दे रहा है। अच्छी कमाई हो रही है, उन्हें क्या करना है, कमाई से मतलब है उन्हें, तो कमाई से मतलब नहीं कुछ है। तो भाई इस तरह अपना विवेक यूज़ करें, इमोशंस में ना बहें, और सोच समझ के व्यक्ति की किसी की भी सहायता करें। और यदि ऐसी पॉवर्टी दिखे आपको तो ऐसा नहीं कि अपन सरकार को कोसने लगो, सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अब किसी की आदत ही पड़ गई है कि भाई नंगे रहने की, तो फिर क्या कर सकती है सरकार, है ना। तो उसी बात के साथ खुदा हाफिज़, मिलते हैं। राम राम। राम राम। जय श्री राम।